کہاں جا رہا ہے رے؟ جان میں مدرسے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. جا جا نکل یہاں سے. تجھے پڑھائی کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے کیا؟ اور ہوتا کیا مدرسہ میں؟ کچھ بھی نہیں. جا نکل یہاں سے. ابا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام طلبہ تشریف لے آئے. طلبہ عزیز، ہم روزانہ علم حدیث علم فقہ سیکھتے ہیں جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. تو چلو آج آزادی کا دن ہے، اس کے متعلق کچھ گفتگو کرتے ہیں. تو بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ ہمارا ملک کب آزاد ہوا تھا؟ ابھی جی ہمارا ملک 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا. بیٹے عبدالرشید آپ یہ بتاؤ کہ 15 اگست اور 26 جنوری ہم ان دونوں دنوں کو مناتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ 15 اگست 1947 عیسوی میں ہمارا دیش آزاد ہوا اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں دیش میں قانون لاگو ہوا. ارے باولیا، او پگلیا، ارے باولیا کٹ گئے او چھوڑا. ہاں کیا ہو دادا جی؟ ارے وہ ٹنگر کٹ گئے زبیریو. وہ اپنا مدرسے گئے، وہ کہہ رہے میں مولوی بنسوں. کیا کرو؟ وہ کہہ رہے میں مولوی بنسوں. اب جی کن گئے وہ. ارے بندہ بولا لڈو بیگ منگانے بھیج بندہ اسکول میں مدرسے میں کسا لڈو مل لیتا بولا نا. اب جی زبیر کو دادا جی بلا رہے ہیں. بیٹا آپ کو سلام کرنا نہیں آتا؟ کیا سلام؟ سلام تو میرے چچا کا نام ہے، اس نے تو ہمارے خاندان کا بیڑا گرک کر رکھا ہے. ارے ہاں چل چل بکواس مت کر. جاؤ دادا کو ہی بھیجنا، انہی سے بات ہوگی. ہم زبیر کو آپ کے ساتھ نہیں بھیجیں گے. ارے دادا دن اب جی بلاوے. دادا جی دن بلاوے اب جی. ارے تو بولو تھوڑی ہو گیا میں اتنا زور زور سے گلو پھاڑنے لگ رہے. کیا بول؟ وہ اب جی دن بلاوے. مرسا کے کون بھیجے بھی زبیر نے؟ کون بھیجا؟ وہ مولوی صاحب کے مولوی کے چلا ہے. کیوں رہا مولوی تو تابر نے بھیجے کی بولنے نے پورا مولا رچے اپنا بگاڑ رکھے تو. اور مدرسے رہسی تو کماشی کے پڑسی کی کھاسی کے بعد میں گھر رہسی کام کرا سی من ہے. السلام علیکم. دادا جی کیا بات ہے؟ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہو؟ دیکھیں مولوی نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کر کے سلام کریے میں نے سیدھے کہتے السلام علیکم اور وہ کون سلام ہے؟ دادا جی تعلیم ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تعلیم ہی سے انسان زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھتا ہے. ارے دیکھیں یہ تعلیم ہے. میں 80 سال گزار دی ایک تعلیم کون سیکھی حال جندو رہے ہو زندگی گزاری نہیں ہے. اگر نام کاٹ سال تو ہوئے ٹکر کھڑے ہٹ جائے چاہ دے. دادا جی 1 منٹ آپ تشریف رکھیں. 1 منٹ تشریف رکھیں. بیٹھ رہا تھا پر 1 منٹ بیٹھ. دادا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولوی بس ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو کھانے کمانے کی فکر نہیں اور مولوی صاحب دوسروں کی زندگی خراب کرتے ہیں. دادا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. مولوی صاحب کسی کی زندگی خراب نہیں کرتے. اور رہا کھانے کمانے کا مسئلہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی اپنے ذمہ لے رکھی ہے. مولوی خود تو گھڑی لمبی تقریر کر دی ہے. یہ ٹاورے نے کچھ سکھا ہوا ہے. ہاں ان کو بھی بہت کچھ آتا ہے. چل زبیر اپنے دادا کو آج کے دن کے متعلق کچھ بتا دے. دادا جی آج 15 اگست ہے اور آج ہی کے دن ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا. اسی کی مناسبت سے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہو کر آزادی کا جشن منا رہے ہیں. آج سے 75 سال پہلے ہمارا یہ ملک ہندوستان 7 سمندر سے پار آئے ہوئے انگریز بھیڑیوں کا غلام تھا. ہمارے بڑے بزرگ سب انگریزوں کی غلامی کیا کرتے تھے.
ये मुल्क हमारा था लेकिन हुकूमत उनकी थी, जमीन हमारे थे लेकिन जमींदार अंग्रेज थे। हम अपने ये मुल्क अपनी इस जमीन में उनके मजदूर थे। अंग्रेज हिंदुस्तान के वासियों पर खूब जुल्म किया करते थे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने 100 साल तक अकेले कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उसके बाद बिरादरान वतन को शरीक करके इस अंग्रेज को इस देश से भगाने और आज़ाद कराने का मंसूबा बनाया। चुनांचे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब धर्म के लोगों ने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, कभी शामली के मैदान में तो कभी मुरादाबाद में। दादाजी, एक दिन ऐसा आया कि हम हिंदुस्तानियों की जीत हुई और इसके बाद पूरे देश में आज़ादी का झंडा लहराया जाता है। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम आज़ादी। देख लिया दादाजी? आज हिंदुस्तान के बारे में तो टिंगर चो को बोले इन्होंने भी किया हुआ है। हाँ, इनको भी बहुत कुछ आता है। चल बेटे अब्दुल रशीद, तू भी इस बूढ़े को आज के दिन के मुतालिक कुछ बता दे। हमारे अकाबिर ने बिरादरान वतन को साथ लेकर इंसानियत के दुश्मन अंग्रेज़ों को मुल्क से निकल जाने पर मजबूर कर दिया। बिलआखिर अंग्रेज़ों के नापाक कदमों से मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पाक हो गई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी में जमहूरी आईन नाफिज करके इस मुल्क को जन्नत निशा बना दिया। लेकिन पिछले कई सालों से कुछ फिरका परस्त अनासी लोगों ने इस जन्नत निशा मुल्क हिंदुस्तान के अमन सुकून को आग लगाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। जैसा कि भागलपुर की इंसानियत का कत्ले आम और मेरठ और मुजफ्फरनगर का लहू लहू मंजर और मुरादाबाद और गुजरात का मनसूबाबंद फसादात और हाल ही में 1 महीने कबल मणिपुर में दरंगी व हालात का सबूत और 1 हफ्ते कबल हरियाणा के नूह में मुसलमानों के अमलाक का नजर आतिश करना और बुलडोजरों के जरिए उनके घरों को मुनहदिम करना। देख लिया दादाजी इनको भी? चल इरशाद, आप भी हिंदुस्तान की तारीख के बारे में कुछ बता दो। हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हिंदुस्तान दुनिया के मालदार देशों में से एक शुमार किया जाता था। लेकिन 15 सदी ईस्वी में अंग्रेज हिंदुस्तान में कारोबार करने की गरज से आते हैं और यहाँ आके एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी खोलते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत थी और ये बहुत शातिर इंसान थे। इनके ज़माने में अंग्रेज हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन हर कोशिश में नाकामी का मुंह देखते रहे। 1977 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अपने मौला हकीकी से जा मिलते हैं और अंग्रेज यहीं से अपने मकसद में कामयाब होते नजर आने लगते हैं और अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी फौज को तैयार करते हैं। और फिर आगे जाके मुसलमानों ने इनके खिलाफ आवाज बुलंद की और 1800 सदी ईस्वी में मुसलमानों ने जगह जगह इनके खिलाफ में आवाज बुलंद की और इनके नतीजे में एक अंदाज के मुताबिक 5 लाख या 500 उलमा किराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। फिर 18 सदी ईस्वी में दिल्ली के लाल किले पर अंग्रेज ने अपनी फतह हासिल की और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया और यहाँ के लोगों ने इनके मातहती में गुलामी की जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। फिर उलमा किराम ने अपने हौसले बुलंद किए और अपनी आवाज़ों के इनके खिलाफ उठाना शुरू किया और ये सिलसिला मुसलसल चलता रहा और 1866 में हुसैन अहमद मदनी पैदा हुए और उन्होंने इनके खिलाफ में आगे चलकर एक रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई। फिर 1916 में हिंदू मुसलमान एक होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने जंगें लड़ी, मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियाँ लुटाई और मुसलमानों ने अपने बच्चों को यतीम किया और मुसलमानों ने अपनी बीवियों को बेवा किया और मुसलमानों ने अपने घरों को उजाड़ा। फिर 1916 में हिंदू मुसलमान एक होते हैं और बाद में एक आलमी बगावत शुरू करते हैं। फिर 1919 में मुसलमान अंग्रेजों पर गालिब आ जाते हैं
फिर अंग्रेज़ों के दिमाग में ये बात खटकने लग जाती है कि अब हमें यहाँ से दुम दबा कर भागना चाहिए, और आखिरकार अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए और आखिरकार यहाँ से दुम दबा कर भाग निकले। लेकिन अफसोस और अफसोस कि अभी हम गुलामी के जंजीरों से निकले भी नहीं थे, अभी हम आज़ादी के दहलीज पे खड़े ही भी ना हो पाए थे कि दोबारा गुलामी के जंजीरों में जकड़ दिए गए। अभी हम गुलशन वतन में अपना नशेमन भी ना बना पाए थे कि उसे उजाड़ दिया गया। अभी हम उठने के काबिल भी ना हो पाए थे कि हमारे परों को कतर दिया गया। वो याजूज माजूज की दीवार दोबारा खड़ी कर दी गई हैं और हम ना करदा गुनाहों की सजा मर के मफादात के मिज़दाक हो गए। ये जुल्म सितम की जद में नामो निशा हमारा, ये जुल्म सितम की जद में नामो निशा हमारा, बर्बाद हो चुका हिंद में अमनो अमा हमारा। हम किस मुंह से कहें इकबाल ये मिसरा तुम्हारा, हम किस मुंह से कहें इकबाल ये मिसरा तुम्हारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बात तो घनी चौकी चौकी बताइए, आज ध्यान वीडियो बनने के बारे में। हाँ, इनको तो बहुत कुछ आता है, लेकिन दादाजी आपके इस बच्चे को भी कुछ आता है कि आवारा फिरता रहता है। दौड़ तो कौन लगा बताना जिसको पूछ लिखे नहीं। हाँ हाँ, देश के मुतालिक एक शायरी में भी सुना दे। वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। जरूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, जरूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, ये जुर्रत ये शुजाअत ये बसालत हम भी रखते हैं। जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं। अरे इतनी ताकत घट सही तेर में तलता मत हो नहीं है, और जमाना ने लाड़ा रे गले में ना ले चुपचाप चाल लड़ से। हाँ वो मौसा पढ़ाओ थे टाबरा थे, ठीक है नहीं ठीक है चलो।